Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 5, Jack and the Beanstalk of your Wordsworth English Reader book. I had written and explained the wow words, word meanings and meaning of phrases, and then I started with the explanation of the lesson. Today also I am going to continue with the reading and explanation of lesson 5, Jack and the Beanstalk. So all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 43. Children, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 43, lesson 5, Jack and the Beanstalk. Students, first of all, I am going to revise the word meanings, then meaning of phrases. Then I am going to read the lesson and continue with the explanation. So children, the first word is belongings. And belongings means possession. The second word is worth, which means of any value, जिसकी कोई कीमत हो. Third word is beloved. Beloved means dearly loved. The fourth word is hustle bustle, which means a large amount of noise and activity. कहते हैं ना चहल पहल हो रही थी. So hustle bustle, a large amount of noise and activity. Fifth word is eager, which means excited. The sixth word is exchange. Exchange means interchange. The seventh word is refuse. Refuse means to say no. The eighth word is furious, and furious means very angry. The ninth word is giant, and giant means huge. The 10th word is cottage. Cottage means small house. The 11th word is mere. Mere means only. And 12th word is speck. Speck means a small mark or small piece. Besides these 12 word meanings, there are 4 phrases also given. The first phrase is with a heavy heart, which means unhappily, बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से. The second word is recovered his spirits, which means was happy again. Sorry. The third phrase is looked over, which means looked carefully. And the fourth phrase is had a kind expression, which means looked with tenderness. Now children, I am going to read this lesson and explain, and then I'll start with the exercise. So please listen to me carefully as I read the lesson for you. Lesson 5, Jack and the Beanstalk, page number 43. Once upon a time, there lived a poor woman who had a son named Jack. She was ill and Jack was too young to work. Almost all their belongings had been sold to buy food. There was nothing left worth selling. They had an old cow named Daisy, whom they were very fond of. One day, Jack's mother said, "Jack, go to the market and sell our cow, or we shall have nothing to eat." Thus the next day, with a heavy heart, Jack left for the market to sell their beloved Daisy. For some time, he went along very sadly, but on seeing the hustle bustle at the market, he soon recovered his spirits. He stood in a corner and started calling out, "Who will buy my cow?" A few farmers looked at Daisy and said, "Oh, the cow is too thin and old." Jack was disappointed as no one came forward to buy his cow. However, he met a farmer at last who looked over the cow and was eager to buy it. Jack asked him, "How much will you buy it for?" The farmer said, "I don't have any money, but I have a handful of magic beans. Would you like to exchange your cow for them?" At first, Jack thought that the farmer was joking, but the farmer had a kind expression on his face. He said, "These are no ordinary beans. They are the most wonderful beans.
that were ever known. If you plant them tonight, they'll grow up by tomorrow morning and reach the sky. For some reason, Jack could not refuse the farmer, and thus he sold the cow for a handful of beans. Alas, when he got home, his mother was furious and she screamed, "You silly boy, what shall we eat tonight?" Angrily, she threw the beans out of the house. Since there was no food to eat that night, both the mother and son slept hungry. Jack woke up the next morning to find his room dark. He jumped out of bed and ran to the window to see what the matter was. He observed that although the sun was shining brightly outside, but besides his bedroom window, there was a giant beanstalk which seemed to reach the sky. He called out, "Mother, look at this giant beanstalk." His mother came to the window and said, "Of what use will this be to us? Chop it off. We can use it as firewood." But Jack did not listen to his mother's words and thought, "I'll just see where it leads to." With that thought, he stepped out of the window and onto the beanstalk and began to climb upwards. He climbed higher and higher till their cottage looked a mere speck below. So students, this was the reading of the lesson. Now I'll continue with the explanation. Now, once upon a time, there lived a poor woman who had a son named Jack. है ना? एक टाइम पे एक औरत थी बेटा जो बहुत पुअर थी और उसका एक यंग बेटा था जिसका नाम था जैक. शी वॉज इल एंड जैक वॉज टू यंग टू वर्क. और वो जो पुअर वुमन थी वो बहुत बीमार थी, है ना. बीमार थी तो वो काम नहीं कर सकती थी और उसका बेटा जैक छोटा था, वो भी बिकॉज छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते. कोई यंग हो, है ना, जवान हो तो वो काम करेगा, मेहनत करेगा, बिकॉज एवरीबडी नीड्स मनी टू सर्वाइव, है ना. बिकॉज मनी रहता है तो आप उससे खाना और सारी ज़रूरतें की चीज़ें खरीद सकते हो. एंड यू ऑल नो, to earn money one really has to work, and this poor woman, she could not work because she was ill and her son Jack was too young to work. तो इसका बेटा छोटा था और जो woman थी वो बीमार थी. So almost all their belongings had been sold to buy food. और बेटा उनके घर का सारा सामान बिक चुका था फूड खरीदने के लिए. There was nothing left worth selling. उनके घर में कुछ भी अब बचा नहीं था कि जिसको बेच के वो खाना खरीद सके, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने ऑलरेडी सब बेच दी थी. They had an old cow named Daisy whom they were very fond of. और जैक और उसकी मदर के पास एक ओल्ड बूढ़ी काऊ थी जिसका नाम था डेजी. एंड डेजी को जैक और उसकी मदर दोनों ही बहुत, they were very fond of it, बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे. One day, Jack's mother said, "Jack, go to the market and sell our cow or we shall have nothing to eat." अब एक दिन जैक की मदर ने जैक से कहा कि जाओ जैक, मार्केट में जाओ और इस काव को बेच के आ जाओ. अगर इस काव को तुमने नहीं बेचा तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है. इस काव को बेच के, सेल करके जो भी मनी मिलेगा उससे हम अपना खाना खरीदेंगे. Thus the next day, with a heavy heart, Jack left for the market to sell their beloved Daisy. अब अगले दिन जैक को बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज वो और उसकी मदर दोनों डेजी से बहुत प्यार करते थे, बट उनके पास ऑप्शन नहीं था कि अगर वो डेजी को नहीं बेचेंगे तो वो फिर खाना कैसे खरीदेंगे. तो नेक्स्ट डे जैक जो है बहुत विद अ हेवी हार्ट, बहुत दुखी मन से डेजी को लेके धीरे धीरे मार्केट गया. ही वॉज वेरी सैड. व्हाई ही वॉज सैड? बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू गेट अपार्ट विथ डेजी. वो डेजी से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता था, वो डेजी को बेचना नहीं चाहता था, वो बहुत अंदर ही अंदर दुखी था. बट उसके पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो बेचारा दुखी मन से डेजी को लेके मार्केट जा रहा था. For some time he went along very sadly, but on seeing the hustle bustle at the market, he soon recovered his spirits. अब थोड़ी देर तक तो जैक बहुत दुखी था
क्योंकि उसको पता था कि वो अपनी बिलवड काउ, अपनी सबसे प्यारी काउ डेजी को बेचने जा रहा है, तो वो बहुत दुखी था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मार्केट आया, और मार्केट में आप जानते हो ना, बहुत रौनक रहती है, बहुत चहल पहल रहती है, लोग चिल्लाते रहते हैं, सामान बेचते रहते हैं, लाइट्स रहती हैं, रोशनी रहती है, तो वो सब देख के जैक की जो स्पिरिट्स है वो फिर रिकवर कर गए। He stood in a corner and started calling out, "Who will buy my cow?" अब जैक मार्केट पहुंच गया और उसको मार्केट के चहल पहल में वो अपना दुख भूल गया कि वो डेजी को मतलब उसको बेचना है करके, और वो एक कॉर्नर में मार्केट के खड़े हो गया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, "Who will buy my cow?" मेरी गाय को कौन खरीदेगा? A few farmers looked at Daisy and said, "Oh, the cow is too thin and old." अब जो भी कोई खरीदने आएगा किसी सामान को तो उसको अच्छे से देखता है कि नहीं, तो कुछ फार्मर्स आए मार्केट में, उन्होंने डेजी को देखा तो उन्होंने बोला, "ओह, the cow is too thin and old." ये गाय तो बहुत ही थिन है और बहुत ओल्ड है। अब बिकॉज जैक और उसकी मदर तो बहुत पुअर थे, तो उनके पास ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं खिलाने को काऊ को। अब आप काऊ को जब नहीं प्रॉपर खाना दोगे तो काऊ तो थिन हो ही जाएगी, एंड शी वॉज ओल्ड। जैक वॉज डिसअपॉइंटेड एज नो वन केम फॉरवर्ड टू बाय हिज काऊ। अब जैक को बहुत डिसअपॉइंट हो रहा था, उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी। उसको तो लगा था कि वो काऊ को बेचेगा एंड ही गेट मनी, एंड उस मनी से वो फूड खरीदेगा। बट जितने भी लोग आ रहे थे डेजी को देखने, वो कोई भी डेजी को नहीं खरीदना चाह रहे थे। क्यों नहीं खरीदना चाह रहे थे? बिकॉज डेजी वॉज वेरी थिन एंड ओल्ड। However, he met a farmer at last who looked over the cow and was eager to buy. अब चिल्लाते चिल्लाते कोई भी फार्मर डेजी को देख के तैयार ही नहीं हो रहा था, बट फाइनली एक फार्मर आया, ठीक है, और वो उसने डेजी को बहुत लुक्ड केयरफुली, बहुत ध्यान से उस फार्मर ने डेजी को देखा, एंड फाइनली ही वॉज ईगर टू बाय इट, ही वॉज वांटिंग टू बाय डेजी। Jack asked him, "How much will you buy it for?" जैक ने पूछा कि आप ये काऊ कितने में खरीदोगे? The farmer said, "I don't have any money, but I have a handful of magic beans." तो वो फार्मर ने जैक को बोला, जैक ने उससे पूछा कि ये काऊ आप मुझसे कितने पैसे दोगे काऊ लेके मुझे? तो उस फार्मर ने बोला कि मेरे पास पैसे तो नहीं है काऊ के एक्सचेंज में, तो मुझे काऊ दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूँ। तुम ऐसा सोच रहे हो, बट आई डोंट हैव मनी। मेरे पास एक हैंडफुल ऑफ बीन्स है। हैंडफुल ऑफ बीन्स मीन्स एक मुट्ठी भर के मैजिक बीन्स है। मैजिक तो सबको पता है ना बच्चों, जो मैजिक जादू वाले होते हैं। कहते मेरे पास जादुई कुछ बीन्स हैं। Would you like to exchange your cow for them? और क्या तुम इन हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स के बदले मुझसे अपनी काऊ को एक्सचेंज करोगे? तो मुझे काऊ दो और उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? ये हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स। At first, Jack thought that the farmer was joking, but the farmer had a kind expression on his face. शुरू में तो जैक को लगा कि ये फार्मर जो है मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसे मैजिक बीन्स नहीं ऑफर करेगा, हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स एक काऊ के बदले। तो जैक को शुरू में लगा कि वो जो फार्मर है वो जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है। बट जैक ने ध्यान से देखा तो उस फार्मर के फेस में एक बहुत काइंड एक्सप्रेशन था, बहुत दया वाले भाव थे। दैट मीन्स कि वो फार्मर वॉज नॉट जोकिंग। ही सेड, "These are no ordinary beans, they are the most wonderful beans that you ever know." और वो फार्मर ने जैक को बोला कि ये तुम समझ रहे हो कि कोई ऑर्डिनरी बीन्स हैं, तो ये कोई ऑर्डिनरी बीन्स, साधारण बीन्स नहीं है, ये सबसे वंडरफुल बीन्स हैं, सबसे वंडरफुल बीन्स हैं। एंड इफ यू प्लांट देम टुनाइट दे विल ग्रो अप बाय टुमारो मॉर्निंग एंड रीच द स्काई। और फार्मर ने जैक को बोला कि अगर आज तुम इन बीन्स को आज अगर प्लांट कर दोगे, जमीन में इनको गाड़ दोगे, तो तुम मॉर्निंग में देखोगे कि ये जो है ये एक सुबह तक, जनरली आप जब बीज बोते हो तो वो बीज को बहुत टाइम लगता है प्लांट होने में और फिर धीरे धीरे बड़ा होने में, है ना। पहले वो सीड को आप वाटर करोगे तो वो स्प्राउट होगी, छोटी सी जड़ निकलेगी, है ना, फिर वो जड़ जमीन में जाएगी, फिर धीरे से ऊपर से शूट निकलेगा। एंड ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना, बीज से प्लांट और उससे बड़ा होने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
बट फार्मर ने क्या बोला जैक को, ये कोई ऑर्डिनरी बीन्स नहीं है, ये वंडरफुल बीन्स है, तुम अगर इनको रात में प्लांट करोगे तो ये सुबह तक इतनी बड़ी हो जाएंगी और स्काई आसमान तक बीन स्टॉक जो बीन का पेड़ है वो ऊपर टच करेगा। For some reason, Jack could not refuse the farmer and thus he sold the cow for a handful of beans. अब पता नहीं जैक को क्या हुआ, ऐसे तो कोई भी एक हैंडफुल ऑफ बीन्स के बदले गाय किसी को नहीं देगा। अब पता नहीं जैक को क्या हुआ कि उसने फार्मर को वो काव दे दी और काव के एक्सचेंज में फार्मर से क्या लिया, अ हैंडफुल ऑफ बीन्स। ठीक है, ये तो कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है। सबको पता है ना कि आप कितनी बार कुछ लोग बच्चा समझ के फूल करने की कोशिश करते हैं, बट आजकल तो आप लोग को भी पता है कि कोई आपको फूल नहीं कर सकता। बट समाव कुछ ऐसा हुआ कि जैक उस फार्मर को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और जैक ने अपनी काव फार्मर को दे दी और फार्मर से बदले में क्या लिया, हैंडफुल ऑफ बीन्स। अलास व्हेन ही गॉट होम, अब यहाँ पे देखो अलास ये इंटरजेक्शन है ना, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। और अलास कब हम यूज़ करते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं। सो अलास व्हेन ही गॉट होम हिज मदर वाज फ्यूरियस एंड शी स्क्रीम। अब जैक जब घर आया तो उसकी मदर को पता लगा कि भाई, उसने पूछा होगा मदर ने कि जैक तुमने कितने में काव को सेल किया, तो जैक को तो फार्मर ने मनी दिया नहीं था। जैक को तो फार्मर ने रिटर्न में काव के एक्सचेंज में क्या दिया था, हैंडफुल ऑफ बीन्स। अब जब उसकी मदर को पता लगा कि उनका जो बेटा है वो काव को एक हैंडफुल ऑफ बीन्स के बदले में बेच के एक्सचेंज करके आ गया है, तो शी गॉट फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गई कि गाय तो गई और उसके बदले में क्या लेके आया, हैंडफुल ऑफ बीन्स, है ना। अब उनके पास तो कुछ खाने को था ही नहीं। माँ का भी गुस्सा आना सही था, कभी मम्मी आपको बोलती है कुछ सामान लाने के लिए भेजती है और आप कुछ गलत उठा लाते हो या कोई आपको चीट करता है, तो योर मदर गेट्स फ्यूरियस, इजंट इट। सो सेम वे जैक की मदर वॉज ऑल्सो फ्यूरियस एट जैक जब उनको पता चला कि जैक ने हैंडफुल ऑफ बीन्स के बदले में अपनी काव को एक्सचेंज कर दिया। यू सिली बॉय, उन्होंने जोर से जैक को डांटा, यू सिली बॉय व्हाट शैल वी ईट टुनाइट, हम आज रात में क्या खाएंगे। मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम काव बेच के जो तुमको मनी मिलेगा उससे तुम फूड लेके आओगे और वो फूड खा लेंगे, बट तुम तो काव को एक हैंडफुल ऑफ बीन्स के बदले में एक्सचेंज करके आ गए और अब हम रात में, हमारे पास तो खाने को कुछ है ही नहीं, हम रात में क्या खाएंगे। एंग्रीली शी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द हाउस, और उन्होंने गुस्से से वो बीन्स ऐसे घर के बाहर फेंक दिए। घर के बाहर उन्होंने बीन्स को फेंक दिया। Since there was no food to eat that night, both the mother and son slept hungry. अब उनके पास खाने को तो कुछ भी नहीं घर में बचा था, तो दोनों बेचारे मदर और सन बिना कुछ खाए भूखे ही रात में सो गए। जैक woke up the next morning to find his room dark. अब जब सुबह हुई और जैक उठा सुबह, तो जैक ने क्या देखा, सुबह जब आप भी उठते हो तो अब देखते हो ना रात में अंधेरा हो जाता है और सुबह होती है तो क्या होता है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है। तो जैक ने देखा कि उसके रूम में रोशनी नहीं है ना, अंधेरा ही अंधेरा है ना। सो he jumped out of the bed and ran to the window to see what the matter was. तो जैक ने देखा कि रोज तो मेरे मॉर्निंग में मेरे जो रूम में बहुत लाइट आ जाती थी, रोशनी हो जाती थी, बट उस दिन इतना अंधेरा क्यों है। सो ही जंप, वो उसने बिस्तर से जंप लगाया एंड ही रैन टू द विंडो टू सी व्हाट द मैटर वाज, और वो भाग के विंडो के पास गया देखने के लिए कि आखिर क्या बात है, क्यों इतना अंधेरा है उसके रूम में। He observed that although the sun was shining brightly outside, but beside his bedroom window there was a giant beanstalk which seemed to reach the sky. तो जैक ने क्या देखा कि उसकी जो बेडरूम की विंडो है उसके बाहर एक खूब बड़ा जाइंट, इतना बड़ा बीनस्टॉक लग गया है और जो सन की लाइट ब्लॉक कर रहा था, रूम में अंधेरा था, तो रूम के बाहर अगर कोई बड़ा पेड़ होता है तो वो लाइट ब्लॉक करेगा, तो वो बीन स्टॉक इतना बड़ा था, स्काई को टच कर रहा था कि सूरज की रोशनी तो बाहर थी लेकिन वो बीन स्टॉक के चलते जैक के रूम में नहीं आ रही थी, और इतना बड़ा बीन स्टॉक था कि वो स्काई को टच कर रहा था।
ऑल ऑफ यू कैन सी इन दी पिक्चर, जैक देख रहा है कि सन इज शाइनिंग ब्राइटली, बट उसके रूम में रोशनी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बीच में क्या है? बीन स्टॉक है। वो बीन स्टॉक है जो लग रहा है स्काई तक जा रहा है। He called out, "Mother, look at this giant beanstalk." और जैक ने तुरंत अपनी मदर को आवाज लगाई कि मदर देखो, ये जायंट बीनस्टॉक को देखो। His mother came to the window and said, "Of what use will this be to us? Chop it off, we can use it at fire." तो उसकी मदर आई विंडो पे, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जायंट बीनस्टॉक का पेड़ है, तो उन्होंने जैक से बोला, अरे ये बीनस्टॉक हमारे किसी काम का नहीं है, चॉप इट ऑफ। चॉप करो मतलब काट दो, काटो, चॉप करो, छोटे छोटे पीसेस में काट दो। आपकी मदर वेजिटेबल्स चॉप करती है कि नहीं? चॉप करना मीन्स टू कट इनटू पीसेस। तो मदर ने जैक को बोला, अरे इस बीन स्टॉक को काट दो, ये हमारे किस काम का? और जो इस बीन स्टॉक की लकड़ी है वो फायरवुड, वो आग जलाने के काम आएंगी। वी कैन यूज द वुड ऑफ द बीन स्टॉक एज फायरवुड। But Jack did not listen to his mother's words and thought, I'll just see where it leads to. But Jack ने अपनी मदर की बात बिल्कुल नहीं सुनी और उसने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये बीन स्टॉक ऊपर इतना स्काई तक गया, ये कहाँ तक जाता है, ये मैं देखना चाहता हूँ। I'll just see where it leads to कि वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है। With that thought, he stepped out of the window and onto the beanstalk. और ये सोचते सोचते जैक ने विंडो से कहाँ पे पाँव रखा? बीन स्टॉक पे, और वो ऊपर क्लाइंब करने लग गया। किस पे चढ़ने लग गया? बीन स्टॉक पे। आप देख सकते हो ना, जैक विंडो से निकला और बीन स्टॉक पे ही क्लाइंबिंग, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ही क्लाइंबिंग ऑन टू द बीन स्टॉक, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी कि ये जा कहाँ रहा है, लीड कहाँ कर रहा है। और वो ऊपर चढ़ता गया, ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर, इतना ऊपर ऊपर गया, टिल दैट कॉटेज, जो उनका स्मॉल हाउस था, वो ऊपर से बहुत छोटा, एक छोटे से निशान, एक छोटे से टुकड़े के बराबर दिख रहा था। जस्ट इमेजिन वो कितना ऊपर पहुंच गया। आप जितने ऊपर हाइट में, आप कभी देखा है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर से या मॉल के लिफ्ट में से आपने देखा है ना कि नीचे की चीजें कितनी छोटी दिखती हैं, है ना? या जो फ्लाइट में ट्रैवल किए उन्होंने फ्लाइट के विंडो में से देखा होगा कि कितने नीचे की चीजें आपको छोटी दिखती है। तो उसी तरह जैक बीनस्टॉक पे इतना ऊपर चला गया था कि उसको अपना घर एक छोटे से मार्क निशान के बराबर दिख रहा था। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जैक एंड द बीनस्टॉक। और इसके आगे की स्टोरी आपके लेसन 6 जैक डिस्कवर्स अ न्यू लैंड में है। सो आई होप अभी सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा, जैक एंड द बीनस्टॉक, कि कैसे जैक और उसकी मदर वो बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, बिकॉज वो दोनों काम नहीं कर सकते थे। जैक की मदर बहुत बीमार थी और जैक बहुत यंग था काम करने के लिए। तो एक दिन उनकी मदर ने बोला जैक को कि जाओ जैक, हमारी जो काऊ है डेजी, जो उनको बहुत प्यारी थी, शी वॉज वेरी बिलव्ड टू देम, बोला कि जाओ इसको सेल कर दो और जो भी पैसा आएगा तो इससे हम खाना खरीदेंगे, क्योंकि उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था बेचने को। तो जैक बहुत हैवी हाथ से मार्केट जाता है अपनी काऊ को बेचने, और वहाँ वो मार्केट की हसल बसल देख के ही रिकवर्ड स्पिरिट्स वो खुश हो जाता है। एंड वो कॉर्नर में जाके चिल्लाने लगता है, हु विल बाय माई काऊ। बट जितने भी फार्मर्स काऊ को देखने आ रहे थे डेजी को, तो वो कह रहे थे कि डेजी बहुत ओल्ड और थिन है, तो कोई काऊ को नहीं खरीदना चाहता था। बट देन फाइनली एक फार्मर एट लास्ट आया और उसको डेजी पसंद आई। तो उसने जैक से बोला कि जैक, आई डोंट हैव मनी, बट मैं इसके, तू मुझे काऊ दे दो और काऊ के एक्सचेंज में मैं तुम्हें एक हैंडफुल ऑफ बीन्स दूंगा, और ये कोई ऑर्डिनरी बीन्स नहीं है, मैजिक बीन्स हैं। तुम इनको रात में प्लांट करोगे और सुबह क्या हो जाएगा, ये जायंट बीन स्टॉक बन जाएगा। और जैक मना नहीं कर पाया, वो बीन्स लेके आया, और जब घर आया तो जैक की मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कि तुमको मैंने काऊ बेचने को बोला था और तुम उसके बदले बीन्स ला। गुस्से में जैक की मदर ने वो बीन्स घर के बाहर विंडो से फेंक दी। एंड जैक और उसकी मदर रात में भूखे ही सोए, बिकॉज दे डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैक उठता है तो वो क्या देखता है कि उसकी विंडो में, रूम में अंधेरा है, विंडो से रोशनी नहीं आ रही है। वो जंप करके बाहर देखता है तो क्या देखता है कि सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, बट उसकी विंडो के सामने एक जायंट बीन स्टॉक, जहाँ उसकी मदर ने जो बीन्स फेंकी थी वहाँ पे एक बीन स्टॉक बहुत ह्यूज सा, वो स्काई तक ऊपर जा रहा है, इतना लंबा बीन स्टॉक है।
तो जैक ने अपनी मदर को बुलाया, तो व्हाट डज दी मदर टेल हिम? मदर टेल्स हिम कि चॉप इट ऑफ, ये बीन स्टॉक को काट दो, हमारे किसी काम का नहीं है, और इससे जो वुड होगा वो हम फायर वुड के लिए यूज करेंगे। बट जैक डिडंट लिसन टू हर, और वो अपनी विंडो से बीन स्टॉक पे क्लाइम करता है और ऊपर 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 चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, एंड फाइनली वो इतने ऊपर चला जाता है बीन स्टॉक पे, उसको अपना घर एक छोटा सा स्पेक के जैसा दिखता है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द रीडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ comprehension exercise A. Fine. So you can do this in the book itself. Exercise A is answer the following question. Answer the following questions in yes or no. तो आप इसी के आगे yes or no लिख सकते हो. Need not write this in the notebook. Answer the following questions in yes oblique no. Now, question 1. Was Jack mother a healthy woman? क्या जैक की मदर एक हेल्दी वुमन थी? आपने अभी लेसन पूरा पढ़ा है। क्या जैक की मदर हेल्दी वुमन थी? अगर वो हेल्दी होती तो वो कुछ वर्क करती और वर्क करके वो अर्न कर सकती, तब उनको घर का सामान नहीं बेचना पड़ता। बट हमने तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि शी वॉज इल। सेकेंड लाइन अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ की पढ़ो तो शी वॉज नॉट हेल्दी, शी वॉज इल। द करेक्ट आंसर इज शी वॉज इल। सो वी विल राइट द आंसर एज नो। Was Jack's mother a healthy woman? The answer is no. I hope all of you have written no. Now, question number 2. Jack's mother was not a healthy woman. She was ill, isn't it? Now the second question. Did Jack and his mother Did Jack and his mother sell all their belongings to buy food? क्या जैक और उसकी मदर ने अपना सारा सामान बेच दिया था फूड खरीदने के लिए? यस, है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था उनके घर में बेचने के लिए एक्सेप्ट फॉर द ओल्ड काउ डेजी। सो द आंसर इज यस, क्योंकि जैक की मदर बीमार थी एंड जैक वाज टू यंग टू वर्क, तो उन्होंने खाने के लिए अपने घर का सारा सामान बेच दिया था। सो द आंसर इज यस। सो डिड जैक एंड हिज मदर सेल ऑल देयर बिलोंगिंग्स टू बाय फूड? The answer is yes. Now, question number 3. Question number 3 is, was Jack happy on reaching the market? जैक मार्केट जब पहुंच गया तो वो खुश हो गया, है ना? The answer is yes, क्योंकि शुरू में तो वो बहुत हैवी हाथ से वॉक करके जा रहा था, बिकॉज he didn't wanted to get apart, अपनी वो काऊ से जुदा नहीं होना चाहता था। बट जब वो मार्केट में पहुंचा और वहां उसने मार्केट की हसल बसल देखी, so he recovered his spirits, he became happy again. So was Jack happy on reaching the market? The answer is
yes. मार्केट पहुंच के तो जैक ने अपने स्पिरिट्स जो वो बहुत लो फील कर रहा था बिकॉज उसको डेजी को नहीं बेचना था, ही रियली लव डेजी अ लॉट, बट जब वो मार्केट पहुंचा और वहां उसने मार्केट की चहल पहल देखी तो ही बिकेम हैप्पी अगेन, ही रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स, सो द आंसर इज यस. फाइन, आई होप सबने इसको बुक में लिख लिया होंगे इनके आंसर्स, यस और नो. नाउ लेट्स रिवाइज दीज. Question 1, was Jack's mother a healthy woman? The answer is no. Question 2, did Jack and his mother sell all their, sorry, it is not C, it is sell, I forgot. S-E-L-L, sell all their belongings to buy food? The answer is yes. They had sold all their belongings. Now they've only left with their old cow. And question 3, was Jack happy on reaching the market? So answer is yes. Initially he was sad because he didn't want to sell the cow. He didn't want it to get depart from it. He didn't want it to get departed. वो cow से depart नहीं होना चाहता था, है ना? वो नहीं चाहता था कि वो cow से अलग हो. He didn't want it to depart with the cow. But finally जब वो market पहुंचता है और वहाँ की हसल बसल देखता है तो he becomes happy again. So the answer is yes. So students, that's all for today. I'll be continuing with the remaining question and answers in the next video. Till then, all of you, please read this lesson again and again. Thank you students. Have a good day ahead.